ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਪਾਵਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ। 8ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 36 ਗੁਣਾ x ਦੀ ਘਾਤ ਹੈ ਇੱਥੇ -8 ਬਟਾ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 है और गुणा 12 ਤੇ ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -3। तो सब तो पहला काम ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਹੈ 36 ਦਾ 36 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਅੰਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਘਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो एक गुणा 6 की जी पावर है वो साढ़े को 2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह x रेज़ टू -3 है तो इन्हों ऊपर लै जाइए तो साढ़े को x की पावर जी 3 हो जाएगी। ठीक है, पावर जी साइन जो चेंज हो जाएगा। इसी ढंग के नाल हेठा फिर साढ़े को बच की जाएगा सिर्फ 12, एक 12 बचेगा और एक साढ़े को x की घात जी -8 है अंश के इनू असीं हर दे लैके आवांगे साढ़े को x रेज़ टू पावर 8 जो बन जाएगा। ठीक है, हुण असीं इनू सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो 36 ਨੂੰ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 12 × 12 12 × 36। ठीक है, ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਬਚੇਗਾ, ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 × 6 ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਵਟਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो x की घात 3 ਵਟਾ 8 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 6 ਸੀਗਾ 36 36 ਤੇ 108 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 108 ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 -1। 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਟਾ ਦੇਾਂਗੇ। तो 108 × x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 108 ਜਿਹੜਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ तो ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 108 ਵਟਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ठीक है, इस तो बाद दूसरा जो सवाल है साढ़े कोल 8वें का दूसरा पार्ट वो साढ़े कोल है। तो इन्हों असीं देख लेने किवें हल करना है। कोशिश करो तुसीं जे हुण तक तुसीं बहुत ध्यान दे नाल देखिया तो तुहानूं कॉन्सैप्ट जिहड़े वो समझ आए होणगे। तो इन्हूं तुसीं अपने आप जिहड़ा ट्राई करो, पहलां कोशिश करो हल करन दी, फिर आंसर चैक करन दे लई जां जे कोई डाउट आंदी है फिर उन्होंने वीडियो नूं अगे प्ले करके तुसीं देख सकते हो। ठीक है, तो 3 रेज़ टू पावर 3 है ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਦੀ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ -1 ਹੈ ਨਾ। ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 3 ਦੀ ਘਾਤ 3। तो ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਘਾਤ -4 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ 16 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 16 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 4 ਵਾਰ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣਦਾ 16। तो ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 16 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ 16 ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 × 9 9 × 27 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 27 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ उत्तर है वो बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी,
तो इस तो बाद अगला जिहड़ा 9वां सवाल है साडे कोल, जेकर p बराबर 5/2 की पावर जिहड़ी साडे कोल 4 है गुणा 2/5 की पावर -8 है, तो p रेज़ टू पावर -2 पता करो घात अंकी रूप विच। इफ p इक्वल्स टू 5/2 रेज़ टू पावर 4 into 2/5 रेज़ टू पावर -8 then write the value of p रेज़ टू पावर -2 in exponent form। तो p की कीमत जिहड़ी सानू दित्ती हुई है और असी कीमत पता किहदी करनी है, p रेज़ टू पावर -2 दी, p की घात -2 दी असी कीमत पता करनी है। कोई गल नहीं, सब तो पहला असी p जिहड़ा ओनू लैके चलांगे। तो p साडे कोल है 5/2 गुणा 2/5 और इहदी पावर है साडे कोल -8। तो पहले तो असीं इहनूं सिंपलीफाई करांगे, फिर उस तो बाद अगे गल करांगे, ठीक है। तो 5/2 है, पहले जिहड़ियां पावर्स ने उन्हां नूं असीं पॉजिटिव करदे हुंदे हां। तो अगर ये साडे कोल पॉजिटिव है 4 तो इहनूं एज इट इज़ जिवें है उवें रख लांगे। तो 2/5 है, इहदा असीं 5/2 बना दांगे ते जिहड़ी इहदी पावर है वो जमा तो घटाओ तो जिहड़ी जमा दी बन जाएगी, ठीक है। +8 हो जाएगा साडे कोल इत्थे। हुण असीं देख सकते हैं कि आधार जिहड़े साडे कोल बराबर हो गए। जदों आधार बराबर है और दोनों जिहड़ियां साडे कोल रकमां ने गुणा हो रही ने, तो जिहड़ियां पावर्स ने घातां ने वो की होणगीਆਂ, वो जुड़ जाणगीਆਂ। तो ये साडे कोल बन जाएगा 5/2 और इहदी दी पावर है वो साडे कोल की आ जाएगी 12, ठीक है। 5/2 रेज़ टू पावर 12 हो गया। तो ये बन गई साडे कोल p दी कीमत, ठीक है। तो हुण इस p दी कीमत नूं असीं यूज़ करांगे p रेज़ टू पावर -2 फाइंड करन दे लई, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, तो p ਦੀ ਘਾਤ अगर असीं -2 ਦੀ कीमत असीं पता करनी है, ठीक है। हुण ਹਾਂਜੀ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ p ਦੀ कीमत है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਰ देंगे, ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ आएगी 5/2 और इस पूरे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ है वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 है, ठीक है। और इस ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ p ਦੀ कीमत है, सिर्फ p ਦੀ कीमत ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਭਰੀ है, पर इस पूरे ਦੀ ਜਿਹੜੀ पावर है p ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है -2। तो ਇੱਥੇ -2 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ठीक है। तो ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। अगर पावर ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। तो ਇਹ ਬਣੇਗਾ 5/2 और 12 गुणा -2, 12 दूना 24, तो -24 आ जाएगा सर को। ये बनेगा 5/2 रेज़ टू पावर -24। और जेकर असीं घात दे विचों नैगेटिव साइन हटाना है तो अंदर वाली जिहड़ा आधार है इहदा असीं बेस दा जिहड़ा रेसिप्रोकल लवांगे 5/2 जिहड़ा साडे कोले 2/5 बन जाएगा 2/5 रेज़ टू पावर 24। लो जी, ये साडे कोल उत्तर बन जाता है इस सवाल का, ठीक है। तो इफ p इक्वल्स टू 5/2 रेज़ टू पावर 12 then p रेज़ टू पावर -2 इक्वल्स टू 2/5 रेज़ टू पावर 24, ठीक। तो इनू बड़े ध्यान दे नाल तुसीं कोई भी सवाल जिहड़ा देखदे हो इहदी जिन्नी प्रैक्टिस तुसीं करोगे मैथ दे विच गणित दे विच जिहड़ा जो भी करन दा तरीका है साडा, मार्क्स अगर लेने तो प्रैक्टिस 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 यही फार्मूले ने। जिन्नी प्रैक्टिस करोगे, जिन्ना कॉन्सैप्ट नूं थॉरोली समझ के करोगे, रट्टा नहीं लगाओगे, उन्ना ही फायदे दे विच रहोगे, ठीक है। फिर चीज़ां नूं तुसीं आप भी अगे डिवेलप जिहड़ा वो कर सकदे हां जी। m दा मुੱਲ पता करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ m ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। तो ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 6/13 और ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4 ਗੁਣਾ 6/13 और ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6। तो बराबर है ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6/13 ਦੀ ਘਾਤ 2m। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 6/3 6/3। तो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6/13 और ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4 ਜਮਾ 6 ਆ ਜਾਏਗੀ और ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ठीक है। तो खब्बे पासे साडे कोल बन जाता लैफ्ट हैंड साइड 6/13 रेज़ टू पावर, हाँ जी, -4 जमा 6। इसका मतलब है 6 घटाओ 4, 6 जमा का 4 घटाओ का साडे कोल 2 आएगा, ठीक। तो ये बन गया साडे कोल 2। दूजे पासे अपने कोल आ गया 6/13 और इसकी पावर साडे कोल आ गई 2m। तो जदों भी साडे कोल इस ढंग दे नाल खब्बा पासा सज्जा पासा दिता होए और दोनों पासे आधार जिहड़ा है वो बराबर है,
ठीक है। आधार दोनों पासे बराबर है तो ये तो हमेशा असीं ये समझ सकते हैं कि m ते n भी ਜਿਹੜੇ दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर होणगे, क्योंकि ਇੱਕੋ ही नंबर ਦੀ ਇੱਕੋ ही संख्या ਦੀ ਇੱਕੋ ही पावर करांगे ਤਾਂ ही ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दोनों पासे बराबर ਬਣਨਗੇ। अगर ਅਸੀਂ m अलग वैल्यू लेने n अलग वैल्यू लेने तो लैफ्ट हैंड ते राइट हैंड साइड कदे बराबर हो नहीं सकते। ठीक है, तो दोनों पासे ਜਿਹੜੀਆਂ पावर्स ने वो भी बराबर होणगीਆਂ जेकर आधार बराबर है। जेकर ਸਾਡੇ ਕੋਲ पावर्स बराबर होण फिर आधार भी बराबर होने चाहिए। ठीक, तो ये साडे कोल इहदे विच हुण इत्थों साडे कोल जिहड़ा वो की बन जाएगा कि जिहड़ा 2 की कीमत है, इस पासे जो पावर है इहदी कीमत है वो 2m के बराबर है, जिहड़ी कि सज्जे पासे साडे कोल पावर है। ठीक है, तो इहदे विचों m की कीमत पता करन दे लई 2 इधर m दे नाल गुणा होया ते 2 नूं असीं दूजे पासे ले जाके 2 दे नाल भाग कर दांगे। ठीक है, ये जिहड़ा 2 इत्थे अगे सी वो नीचे चले जाएगा 2 दे, तो 2 नूं 2 नाल भाग कीता साडे कोल 1 आ जाएगा। तो m की कीमत जिहड़ी साडे कोल की बनदी है 1 बनदी। ठीक है, so m equals to 1 is the answer of this question। ठीक है, राइट वैल्यू मतलब दोनों इत्थे ਅਸੀਂ m ਦੀ ਕੀਮਤ अगर 1 ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। तो बिल्कुल उस ढंग का सवाल है 4/5 की पावर जी साढ़े को -6 है इंटू 4/5 फिर 4/5 है और ये जी पावर है वो साढ़े को 3 है। और सज्जे पासे साढ़े को की है 4/5 4/5 रेज़ टू 2m + 1। ठीक है, तो खब्बे पासे क्योंकि साढ़े को जो आधार है बेस है वो बराबर है तो पावर जी ऐड हो जाएगी, विचकार गुणा का निशान है तो -6 + 3 है। दूजे पासे भी साढ़े को 4/5 है तो यदी पावर जी साढ़े को 2m + 1 रहेगी। ठीक है, तो -6 है +3 है, एक का साइन नैगेटिव है एक का पॉजिटिव है, मतलब इन्हां च होएगी फाइटिंग, मतलब घटाओ होएगी, आपस जुड़नगे तो नहीं है ना। तो साइन जो वो वड्डे वाला आएगा, वैसे माइनस तो आप 6 के तीनों ही करना है। ठीक है, तो -3 साढ़े को आ जाएगा उत्तर का। और खब्बे पासे साढ़े को सज्जे पासे बन रहा है 4/5 की घात 2m + 1। फिर उसी ढंग के नाल जिहड़ा आधार है वो साढ़े कोल बराबर ने, तो पावर्स भी साढ़े कोल बराबर होणगीਆਂ। दैन -3 = 2m + 1। ठीक है, -3 की जिहड़ी कीमत है 2m + 1 के बराबर होएगी। इहनूं असीं घुमा के लिख लैने इस ढंग के नाल। तो हुण m की कीमत पता करनी है, तो जिहड़ी भी साढ़े कोल कॉन्स्टेंट चीज़ है खब्बे सज्जे पासे खब्बे पासे, इहनूं असीं पहलां सज्जे पासे शिफ्ट कर दांगे। तो 2m इत्थे रहेगा और इत्थे +1 है, +1 नूं जदों असीं सज्जे पासे लैके जावांगे तो ये साढ़े कोल -1 हो जाएगा। ठीक है, +1 इनू हमेशा पिछे लिखना है इधर सज्जे पासे जाके, और साइन जड़ा चेंज कर देना है, प्लस माइनस के बदल जाएगा। तो 2m = -4 हो जाएगा और फिर 2 के नाल डिवाइड कर दो, दैन m = -4/2 एंड ये साढ़े कोल -2 बन जाएगा। सो इस सवाल का जरा सही जवाब है वो साढ़े कोल की आ गया, m की कीमत जी साढ़े कोल -2 बन जाती है। ये साढ़े कोल -3 और ठीक है। तो इस तो बाद अगला सवाल भी बिल्कुल इस ढंग का है, इनू भी तुसी अपने आप पहले ट्राई करो, कोशिश करो, फिर उस तो बाद वीडियो नूं अगे वीडियो चला के देख सकते हो। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ मैं सज्जे पासे ਜਿਹੜਾ सज्जे पासा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4/9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2m - 3। ठीक है, 4/9 raised to 2m - 3 और जो खब्बे पासे ਇਹਨੂੰ सज्जे पासे लिख लांगे। ये साढ़े कोल 4/9 4/9 raised to -8 है इंटू 4/9 raised to 15। ठीक है जी, तो ये भी आधार बराबर ने दोनों पासे, दोनों पासे भी इन्होंने दोनों के आधार बराबर ने, तो जिहड़ियां पावर्स ने वो आपस के असीं जोड़ देंगे तो -8 + 15 हो गया। तो ये बन गया साढ़े कोल 4/9 की घात, हाँ जी 15 चों 8 कटे ये साढ़े कोल आएगा 7। ठीक है, 15 - 8 7 आ जाएगा। तो 4/9 जिहड़ा साढ़े कोल इहदी घात साढ़े कोल 7 बन जाती है। और खब्बे पासे नूं तां सानूं उहदे विच साढ़े कोल इक्को ही रकम सी, इहनूं हल करन दी सानूं लोड़ नहीं है, इहनूं असीं इसे ढंग दे नाल लिख लांगे 4/9 raised to 2m - 3। ठीक है, तो हुण आधार दोनों पासे बराबर ने, बेस बराबर ने, तो पावर्स भी जिहड़ियां बराबर होणगियां। तो 2m - 3 = 7 आ गया साढ़े कोल। इट इंप्लाइज नीचे कर लेने चलो, तो 2m और 3 माइनस का इनू असीं दूजे पासे शिफ्ट करांगे 7 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2m = 10
और m की जी कीमत है वो साढ़े को 10/2 भाव 5 आ जाएगी m बराबर 5। लो जी, तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो साढ़े को की बन जाता है 5। ठीक, इस तो बाद अगला जो साढ़े को है म्यारी रूप में लिखो, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। वैल्यूज तुम देख सकते हो, नंबर जोड़े बहुत बड़े चौड़े जो लिखे हुए हैं, इन्हों असी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखना। तो इनू पहला असी समझ लीए कि स्टैंडर्ड फॉर्म जी साढ़े को होंगी की है। जिमें मेरे को अगर है 300, 300 मैं की लिख सकता 3 गुणा 100। ठीक है, जो 100 है इनू भी अगे ब्रेक किया जा सकता है, इनू असी लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो जो 10 गुणा 10 है इनू असी अगे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो कहने का भाव है जो 300 है इनू आप लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 2। ठीक है, आप कोई होर संख्या ले लें जिमें 75,000 ले लिया। ठीक है, तो जो भी असी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखना है तो हम जिदा असी 300 जो लिखा तो दो चीज़ों से तोड़ लिया, एक 3 के एक 10 की पावर 2 ये जो पहला नंबर है हमेशा 1 तो 0 तो 10 के विचकार होना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखना है। हुण ये जेकर मैं लिख ला 75 गुणा 1000, तो ये जी संख्या है साढ़े को 0 तो 10 के नहीं बनी। 75 का जो बहुत बड़ा नंबर होंगे 10 तो। ठीक है, तो इनू होर अगे लिखण के लिए करन दे लिए आपां की कर सकते हैं, 75 नूं मैं लिख सकदा 7.5 इंटू 10 अगर कर ला तो। ठीक है, क्योंकि अगर 7.5 नूं असीं 10 दे नाल गुणा करिए तो साढ़े कोल 75 बन जाता है। ठीक, तो 75 नूं फिर असीं इवें भी लिख सकते हैं 7.5 गुणा 10। ठीक है, तो नाल ये गुणा 1000 जो पहले ही है, तो 7.5 गुणा 10 1000 भी जेकर असीं तोड़ लीए तो 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा साढ़े को। ठीक है, तो 10 कितनी बार आ गया 4 बार, तो इन्हों असीं लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो 75,000 नूं जेकर असीं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखना होवे, 75,000 नूं असीं लिखना होवे म्यारी रूप के तो वो साढ़े कोल बनता है 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, 7.5 गुणा 10 की घात 4। तो इनू इस ढंग के नाल हर बार आप जरूरी नहीं इस ढंग के नाल करके देखना है, बहुत सौखे तरीके के नाल असीं वैसे लिख सकते हैं। सिंपली जो पहले दो अंक है बाकी तो जीरो है वो असीं छड्ड देंगे बाद। ठीक है, ये असीं की करना है 7 तो बाद इत्थे पॉइंट लगा देना 7.500। हाँ, 7.500 इत्थे कर देना आप 5000 नाल की करना है ये दशमलव तो बाद एक अंक छड़ के बाकी जिन्ने अंक पिछे बचते ने उन्नी असीं 10 की घात नाल जिहड़ी ओह कर देनी है 10 की घात 4। ठीक है, जिद्दां हुण अगर मेरे कोल होवे संख्या 1 2 3 4 ये संख्या है तो इहदे च आपां की करांगे इहनूं 1.234। ठीक है, पहला अंक छड़ के पॉइंट लगाता, उस तो बाद पिछे जिन्ने दशमलव तो पिछे अंक हैगे ने साडे कोल इहदे च बनदे ने उन्नी असीं 10 की घात जिहड़ी ओह कर देंगे ते 10 की घात 3 कर देंगे। ठीक है, और कोई संख्या आप देख लें जिमें 47320 है, तो इन्हों असीं की लिखांगे 4.7320 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा बच्चों, बिल्कुल सही 4 आएगा, क्योंकि साडे कोल इत्थे डेसीमल तो बाद जिहड़े 4 अंक बनते हैं। ठीक है, गुणा 10 की घात 4। तो ये साडे कोल जिहड़ियां स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिते हुई संख्या नूं असीं स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच इस ढंग दे नाल लिख सकते हैं। हुण अगर साडे कोल कोई संख्या इस ढंग दे नाल बन जाए जिमें 0.00783, हुण इहदे विच दशमलव जिहड़ा पहले लग्या होया, तो इहदे च असीं दशमलव नूं 3 अंक अगे लेके जाना, असीं 7 दे पिछे लेके जाना। ठीक है, क्योंकि ये जिहड़ी संख्या साडे कोल पहला वाला पार्ट है ये 0 तो वड्डा ते 10 तो छोटा बनना चाहिए। ठीक है, तो उहदे लई असीं की करांगे, हुण इस केस दे विच फिर असीं की करांगे, जिद्दां हुण उपर वाले नूं जेकर असीं समझीए जदों संख्या दे विच किते भी दशमलव नहीं हुंदा तो इहदा मतलब उस संख्या दे पिछे दशमलव हुंदा है। ठीक है,
ਤਾਂ ਉਸ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ 10 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮਾ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਘਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ 7.83। तो जो सज्जे पासे असी लेके जाना है तो नाल इत्थे 10 की घात किन्ने पॉइंट जिहड़ा असी इहनूं पिछे लगे 3 ते इत्थे 10 की घात जिहड़ी है असी -3 करांगे, 10 रेज़ टू पावर -3 इहनूं असी लिखांगे। ठीक है, 0.00783 नूं जदों असी स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट करांगे तो जिहड़ा 0 इत्थे साडे कोल जिहड़ा नंबर है पहला आ वाला जिहड़ा 7.83 है 10 तो छोटा है 0 तो वड्डा है, तो ये जिहड़ी संख्या साडे कोल 0 तो वड्डी करन दे लई की कीता सी, ये जिहड़ा दशमलव है इहनूं असीं चक के पहला जिहड़ा साडे कोल नॉन जीरो नंबर है उहदे पिछे लै गए। तो उहदे लई सानूं किन्ने स्टैप पिछे जाना पिया, 3 स्टैप पिछे जाना पिया। ठीक है, तो 3 स्टैप अगर असीं सज्जे मूव करदे हां तां नाल 10 की घात जिहड़ी ओह -3 आ जाए। ठीक है, और यही जे साडे कोल हुंदा है इस ढंग दे नाल 7830 हुंदा, फिर इहनूं असीं करदे स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट, तो इसदा मतलब सी कि लास्ट दे विच पॉइंट पिया इहनूं असीं सज्जे खब्बे जाके जिहड़ा ओह इत्थे लेके जाना, तो 3 अंक खब्बे जाना है, फिर असीं की करना सी इत्थे आ तां जाना सी 7.830 नाल इत्थे बन जाने सी 10 की घात 3 जमा दे 3। ठीक है, तो पॉइंट किधर मूव करता है उहदे नाल साडे कोल इह पता लगदा है कि जिहड़ी 10 की असीं घात इत्थे करनी है ओह असीं जमा दी करनी है जां घटाऊ दी करनी है। ठीक है, तो मैनूं उम्मीद है कि इहदे विचों तुहानूं जिहड़ी चीज़ जो मैं समझाउण दी कोशिश कीती है जरूर तुसीं समझे होवोगे। हुण आपां इहदे नाल दे सवाल जिहड़े ओह करदे हां तो उहदे नाल होर तुहानूं जिहड़ा क्लीयर हो जाएगा। म्यारी रूप विच लिखो। हाँ जी, सब तो पहली हुण संख्या जिहड़ी साडे कोल है इहदे विच पहलां असीं लिखिए 307 फिर 1 2 3 4 5 6 0 एक होर ने साडे कोल सिफरां पिछे होर ने। ठीक है, तो 3 तो बाद असीं पॉइंट जिहड़ा लगावांगे इत्थे पहली गल तां 3.07, तो पिछे पॉइंट तो बाद जेकर साडे कोल कुछ अंक ने उस तो पिछे सिर्फ 0 आने तो उस 0 जिहड़ियां सारियां सिफरां ने उन्हां नूं असीं छड्ड सकदे हां। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਪੈਗੀ। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 8 ਅੰਕ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਕੇ 8 ਅੰਕ 8 ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ 10 ਦੀ ਘਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਸਾਨੂੰ 8। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये साढ़े कोल तो ये साढ़े कोल 30 करोड़ 70 ਲੱਖ है। ठीक है, 30 करोड़ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 3.07 into 10 raised to power 8। तो इस तो बाद दूसरी ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ठीक है, और ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 1 8 6 ਸਿਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7, तो नाल की आ जाएगा साडे कोल इत्थे 10 की घात की आएगा 7, 10 raised to power 7 7.186 into 10 raised to power 7 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.0007 ਹੈ। तो ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 00007.6। ठीक है, तो अगे वालियां सिफरां नूं असीं छड्ड भी सकते हैं। ठीक है, इन्हां दी सानूं कोई जरूरत नहीं, पर इहदे विच हुण इह सानूं देखना पेगा कि जिहड़ा दशमलव है उहनूं असीं किन्ने अंक सज्जे पासे मूव कीता। ठीक है, तो एक अंक 2 3 ते 4 जेकर सज्जे मूव कीता है 4 अंक तां नाल इत्थे 10 की घात साडे कोल 10 raised to power -4 जिहड़ा ओह बन जाएगा। ठीक है, तो इसे ढंग दे नाल इस सवाल दा जिहड़ा उत्तर है वो पहले तुसीं अपने आप ट्राई करो किन्ना है, फिर अगे वीडियो नूं पॉज करके चला के जरा देखियो। ठीक है, कोशिश करो पहला इहनूं सोचण दी। ये साडे कोल बनेगा 3.376। ठीक है, तो किन्ने अंक आपां अगे गए 1 2 3 4 ते 5 अंक। ठीक है, तो नाल की आ जाएगा साडे कोल 10 raised to power -5। ठीक, हाँ जी, तो अगला साडे कोल सवाल है सधारण रूप विच लिखो, राइट इन द यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो पहले असी यूजुअल फॉर्म दे विच रकमां सानूं दित्तियां होईयां सी, इन्हां नूं असी स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट कीता। तो हुण असी स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच सानूं दित्तियां होईयां ने, साइंटिफिक फॉर्म दे विच इन्हां नूं असी सधारण रूप दे विच कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 4.5 into 10 raised to power 4 है। 10 raised to power 4 भाव है कि 4.5 नूं असी गुणा करांगे 10,000 दे नाल। ठीक है, 10 नूं 10 नाल 4 बार गुणा करांगे तो 10,000 बनेगा। तो इसका मतलब ये जो दशमलव है वो 4 अंक होर पिछे चले जाएगा। ये साडे कोल बन जाएगा 4 5 नाल 3 सिफरां जिहड़ियां वो लगावांगे आपां 3 zeros। ठीक है, तो 5
उस तो बाद 3 जीरो से साडे कोल 4 हो गया, तो 4 डिजिट तो बाद जिहड़ा पॉइंट इत्थे चले जाएगा। ठीक है, इत्थे असीं 0.0 लिखना ते लिख सकते हैं, वैसे इहदी कोई जरूरत सानू नहीं है। ठीक है, 45,000 साडे कोल बन जाता है। इस तो बाद इहदे च असीं अगर देखिए तो ये साडे कोल 10 की घात 6 है, तो इसका मतलब है जिहड़ा पॉइंट है वो 6 अंक सज्जे जिहड़ा मूव करेगा। ठीक है, तो ये साडे कोल बनेगा 23 94 61 ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 0 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਣੀ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2.39461 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इसे ढंग दे हम अगर साढ़े कोल घात -5 है तो पॉइंट जो खब्बे पासे असीं मूव करांगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्योंकि जो साढ़े कोल पिछले सवाल दे विच असीं देखिया सी अगर पॉइंट साढ़े कोल इधर सी इहनूं असीं सज्जे पासे मूव कीता सी ते नाल 10⁻⁻4 सानूं पावर लगानी पेगी। ठीक है, तो अगर इहदे तो वापस असीं जाना इधर नूं इस साइड नूं तो पॉइंट जिहड़ा साढ़े कोल 7 दे पिछे है इहनूं असीं खब्बे पासे मूव करांगे ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.0076 ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹ 3 ਜਿਹੜਾ 0.74 ਹੈ 374 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। तो पॉइंट तो पहला एक तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, फिर साढ़े को जो दशमलव इतने बनेगा। ठीक है, ये अगे असीं फिर सिफर जी लगावांगे। ठीक है, तो 3.74 इंटू 10⁻⁵ नूं असीं की लिख सकते हैं 0.0000374। तुसीं देख सकते हो इनू जे वापस असीं म्यारी रूप च बदलना होवे स्टैंडर्ड फॉर्म च, तो आपां जिवें पहलां गल करके आए सी कि पॉइंट नूं असीं 3 दे पिछे लैके आवांगे, तो लैके आउण दे लई किन्ने अंक ने इत्थे 5 अंक जिहड़े ओह टप्पणे पैणगे इहनूं ना पॉइंट नूं दशमलव नूं, तो 10⁻⁻5 नाल आ जाएगा, तो साडे कोल वापस जिहड़ा ये उत्तर जिहड़ा वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसी ढंग दे नाल 6वें नूं पहलां अपने आप करके देखो। ठीक है, फिर इहदा आंसर तुसीं अगे देखना, ये वैसे बन जाएगा 6 साडे कोल पॉइंट ने सज्जे पासे मूव करना क्योंकि इत्थे जमा दा साडे कोल पावर जिहड़ी घात है वो जमा दी है। ठीक, तो ये बनेगा साडे कोल 6 1 नाल कितनियां सिफरां आउणगीਆਂ, एक ते साडे कोल ये हो गया, नाल 8 सिफरां होर लगावांगे तां साडे कोल 9 अंक जिहड़े वो बनणगे। ठीक है, 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, तो ये साडे कोल संख्या जिहड़ी बन जाती है सधारण रूप दे विच 6.1 इंटू 10⁻9। ठीक है, ओके जी। इस तो बाद साडे कोल आखिरी सवाल है मेरे ख्याल इस वर्कशीट का। तो धरती का आयतन सूरज तो लगभग 7.67 इंटू 10⁻7 गुणा है। मतलब धरती का जो आयतन है वो सूरज के आयतन तो इन्ने गुणा है, इतने घात -7 है, तो ये नंबर बहुत छोटा है असल दे विच। ठीक है, इसनूं सुधारण रूप में दर्शाओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7.67 इंटू 10⁻7 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सन, राइट इट इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो 7.67 इंटू 10⁻7 है। हाँ जी बच्चों, तो पॉइंट किधर जाएगा इस बार, जो तुसीं इहनूं यूजुअल फॉर्म च कन्वर्ट करांगे खब्बे पासे नूं मूव करेगा। ठीक है, तो जां असीं इहनूं एक होर ढंग दे नाल भी लिख लैने जे तुसीं समझ सको। ये 7.67 है ना इंटू 10⁻7 है। आपां पहलां गल करके आए अगर साडे कोल पावर जिहड़ी वो नैगेटिव होई तो उहनूं पॉजिटिव करन दे लई आपां इवें थल्ले पूरी रकम नूं आपां नीचे लिया सकदे हैं। ठीक है, नीचे तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ऊपर साडे कोल -7 सी, नीचे आएगा तो +7 हो गया। तो ये साडे कोल बन गया 7.67 डिवाइडेड बाय एक दे नाल 7 सिफरां लगा दो। ठीक है, तो हुण जदों असीं डिवाइड करांगे तो जदों असीं मल्टीप्लाई करते हैं 10 100 या 1000 दे नाल ते जिहड़ा डेसीमल है वो सज्जे मूव करदा है, जे डिवाइड करांगे तो डेसीमल खब्बे मूव करेगा। किन्ने अंक मूव करेगा खब्बे, 8 जिन्नियां ते सिफरां ने साडे कोल 7 सिफरां ने, तो 7 अंक अगे असीं लैके आवांगे। तो एक दा साडे कोल 7 हो गया, इस तो इलावा सानू इत्थे 6 सिफरां होर लगाणियां पैणगीਆਂ 2 3 4 5 6 और 7 6 7। ठीक है, तो डेसीमल जिहड़ा वो साडे कोल इत्थे आ जाएगा। डेसीमल दे अगे जिहड़ी 0 है असीं काउंट नहीं करनी, ये वैसे सानू जिहड़ी वो लगानी पैंदी है। ठीक है, तो ये साडे कोल उत्तर जिहड़ा वो बन जाता है। तो ये साडे कोल लास्ट सवाल सी इस वर्कशीट का। तो मैनूं उम्मीद है हर एक चीज़ नूं तुसीं बहुत ध्यान दे नाल देखिया समझिया होएगा। ठीक है, दोनों वीडियोज़ तुसीं देखिया होणगीਆਂ ते इस चैप्टर का हर एक कॉन्सैप्ट जिहड़ा सी इहदे विच डिस्कस कीता वो तुसीं जरूर चंगी तरह समझिया होएगा। कोई भी चीज़ नहीं पता लगी, कोई भी डाउट है किते दा तुसीं नीचे कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके जिहड़ा पूछ सकदे हो, दस सकदे हो। ठीक है, तो
ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੈਸਨ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਫਿਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।